یہ انعام ہے خدا کا، اتنا زبردست انعام دیا امام علی مقام کو ایک کے ساتھ میں جو قیامت تک شہید ہوتے رہیں گے خدا تعالیٰ ہم سب کو انعام یہ امام علی مقام علیہ السلام کا انعام ہے کہ شہادت ان کو عطا ہوئی اور کائنات امت مصطفیٰ میں جو شہید ہوتا رہے گا وہ شہادت کے درجے سے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ یہ تھی حضرت سیدنا امام علی مقام بننا۔ بھیا آپ بھی سوچیے کیسے امام حسین ہیں جو برداشت کر رہے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں مگر امام علی مقام کا نہیں زبان نہیں، بلکہ ہم اپنے جو بچپن میں دعا کے خدا کی محبت اس کی دلیل پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی ایسے دعوت کی دلیل پیش کرنے کی اس طرح ناتواں کہ ہم امتحان میں فیل ہوئے، اس لیے کہ ہم پر ہمارے ذہن و قلب پر دنیا کا غلبہ ہے، ان کے ذہن و قلب پر دنیا کا غلبہ نہیں تھا، آخرت کا غلبہ تھا، نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا، ان پر شریعت کا غلبہ تھا، ان پر طریقت کا غلبہ تھا، ان پر حقیقت کا غلبہ تھا، ان کو عرفان کی دولت حاصل تھی۔ ہم اس سے یہ بیٹھا پھر ہم کو بھی ذہن دیا ہے کہ تم سب بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھنا، اگر ذبح کر دیا جائے گا تو تم ہمارے قریب ہوں گے اور نہ ذبح کیا جائے گا تب بھی تم ہمارے قریب۔ نماز پڑھتے رہے، جاتے جاتے درس نماز پڑھ دیا، نماز ہے کیا؟ ہم اکثر بیشتر اپنے بیان ہے تو مقرر وغیرہ تو ہوں گے، سیدھی بات ہے، مولوی لوگوں کو بھائی الگ بات ہے، تو پیر ہیں، پیر دادے ہیں، سمجھے، بس یہ سمجھے تو مدار رکھتے ہیں کہ سینے میں اس کی سوا کچھ نہیں ہے، سب بات۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارا مشن ہی ہے کہ جس میں ہم کو فائدہ ہو بات بتائیں، جس میں ہمارا کام کرے وہ کام کی بات کہیں۔ نماز ہے کیا بھیا؟ نماز اگر ہم نہ پڑھے تو کیا اللہ تعالیٰ کا نقصان دے گا؟ بتاؤ، اللہ کا نقصان ہے اس میں ہماری نماز نہ پڑھنے میں، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ نہیں، نماز پڑھیں تو اس کو فائدہ ہے، نماز نہ پڑھیں تو اس کی ساتھ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نماز پڑھتے ہیں تو فائدہ ہمیں، نماز نہ پڑھتے ہیں تو نقصان ہے، دونوں۔ تو اچھا جب پڑھنے میں فائدہ نہ پڑھنے میں نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے تو یہ تو بات صحیح ہے کہ جس کاروبار میں نفع اور نقصان کا علم نہ ہو وہ یہ کرتا ہے، جس کاروبار کا یہ علم نہ ہو اس میں نفع اور نقصان کا ہوگا۔ تو نماز میں فائدہ کیا ہے؟ پڑھنے، نقصان کیا ہے؟ نہ پڑھنے۔ اس لیے اس پر تھوڑی سی روشنی انشاءاللہ تعالیٰ ڈالنا اور اس کو بھی یاد رکھنے والی، ذہن میں ڈال دینے والی کہ ہم کو نفع ہے۔ دیکھو ہر انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات دیا، اشرف تمام مخلوقات سے سب کو فرق کیا تو معاملہ وہ یہ ہے ہمارے آپ کے درمیان تو نبی بھی پیدا ہوئے، ولی پیدا ہوتے ہیں، قیامت ہوتے رہے، اسی کو ہے، لیکن بغیر نماز کے ہیں۔ تو نماز ہے شاید جو ہم کو ولی بنائے، ولایت کے درجے تک پہنچائے، وہ تو بہت مجبہ مقبہ اوقات ادار بنائے، سمجھے۔ حضرت مدار مرتبہ مداری طرفائے کوئی مرتبہ پیچھے سے نہیں گیا، بلاغت نہیں کیا، نہیں، نماز کے بغیر چلے تو نفع کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس 5 طاقتیں ہیں، اور وہ کون کون سی طاقت ہے؟ ایک دیکھنے کی طاقت، دوسرے سننے کی طاقت، تیسرے ذائقے کی طاقت، چوتھے محسوسات، احساسات پر ہم یہاں پر بیٹھے رہے اور پوری دنیا کا تصور کرنا بھوکے رہی ہے، ایسا ہے آپ کبھی ڈوبے کی بنی، لیکن یہاں اس کو لامسا کرتے، احساسات کرتے، محسوسات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ دیکھا طاقت، علم کی طاقت۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، جس کو ہم اور آپ سب اردو زبان میں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یار حواس خراب ہے کیا؟ کہتے ہیں ہمارے حواس درست ہے کہ خراب ہے؟ یار تمہارا حواس
हंसा सही है कि नहीं, ऐसे तो कहते हैं। तो उस क्या चीज है? हंस माने 5, हवास 5 किस्म के हैं, और उस हवास मंत्र का नाम क्या है? अरबी है। कुव्वते बासरा यानी देखने की ताकत, कुव्वते सामिया सुनने की ताकत, कुव्वते जायका जायके की ताकत, कुव्वते लामसा छुपे हुई बात को जानने की ताकत, कुव्वते मुदक्का इल्म की दौलत। ये 5 चीजें हमारे पास होती हैं। जिसके पास ज्यादा हो वो पहले मौलवी साहब होता है, फिर मौलाना साहब हो जाता है, फिर अल्लामा साहब हो जाता है, फिर मुफ्ती साहब हो जाता है, फिर मुजद्दिद साहब हो जाता है, मुहाफिज साहब बढ़ते चले जाता है। इल्म की बुनियाद, उसकी सूझबूझ की बुनियाद ऐसे तो है। लेकिन ये माल आता कहाँ से? ये चीज आती कहाँ से? इल्म कहाँ से मिलता है? गैर छुपे हुए गैर की बात हमें कहवास मानी है। आंखों में हम नीचे भी हूं, दूर की बात कैसे दिखाए? कान बहरे भी हूं, होशियारी समाज में कितनी ज्यादा कहां से आती है? ये सब चीजें जो आती हैं कहां से? ये है, ये सब चीजें आती हैं काबे से। ये 5 चीजें 5 जगह से, 5 काबे की जगह से आती है। और काबे का जो है 5 पहाड़ पत्थर लगाए गए हैं। काबे की जो तामीर की बताई पैदा हो गई, तो वो खाने काबा का गिरने वाला माल इसी तरह से रख सकते हैं। अब क्या करो? कुरान की सुन्नत बुलाओ और फिर गांव में जाओ, क्या हो गया? यानी रुकू में चले जाओ, पहले नहीं बने अब नाम बन जाओ, और जब नाम बनो तो कहो उसकी हमदुसना बयान करो, उसके किबरिया बयान करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर खड़े हो जाओ। और जब खड़े हो तो क्या हो जाओगे? फिर अजीब भी गए, पहले नहीं बने फिर नाम बने, फिर खड़े हो जाओगे। अरे तो क्या हो? अल्लाह, लेकिन नाम मुकम्मल है, अभी छोटी है इसका छोटी है अल्लाह हो गई, अल्लाह नहीं। तो अब क्या करो? सजदे। जब तुम सजदे में जाओगे तो छोटी है बन जाओगे। अब वो छोटी है अलिफ लाम, फिर अलिफ के आगे चकाचक इस तरह नमाज करोगे। अल्लाह की रहमत से बरकते जमात जवाहरात रहमत के साथ दोनों की तुम्हारी तरफ होते उच्चारण करने। मगर एक बात याद रखना, खाली अल्लाह से कुछ नहीं होता, दावा कर रहे खाली अलिफ लाम अलिफ कुछ नहीं होता जब तक मोहम्मद हो। बगैर मोहम्मद के कुछ नहीं मिलना। वजीरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कुछ नहीं। और मोहम्मद कैसे लगाया जाए? आइडिया है कि शक्ल अगर देखना चाहो तो कैसी है? जब आप सज्जे में जाते हैं क्या होता है? आपका सज्जे में रखा हुआ सर मीम बन जाता है, और ये लगती हुई कोलियां बड़ी है बन जाती है। ये मीम और ये बड़ी है, आपके बच्चे के लिए स्प्रिंग मीम बन जाते हैं, आप ये पैर पहले दाल बन जाते हैं। तुम्हारे हुआ मीम है मीम दाल, जब मीम है मीम दाल तो आयुष तब भी खुद मदार देगा तो 596 साल की उम्र पाए हैं, 600 साल की उम्र पाए हैं। लिखा ने 40 साल की उम्र तक खाना खाया, 556 साल तक खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया, ये कैसे मुमकिन है कि आप जिंदा रहे? बगैर खाए कौन जिंदा रह सकता? बताओ। अगर किसी को खाना न दिया जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीना वक्त वो खा सकती, उसके बाद रिश्तेदारी से कुछ हो जाए, ऐसे ही तो है ना। अब कुतुबुल मदार खाए ना जिंदा है, कुतुबुल मदार खाए ना जिंदा इसीलिए रहते थे कि उनके जिस्म के अंदर कुव्वत सामने अटका रहा है, वो दौलत आपको खिलाई जा रही है जो दानों में लग के रह जाती है। हमको जो खाने मिलता है वो दानों के जरिए मिलता है, और उनको जो मिलता है तो दानों में मिलकर नहीं आता, डायरेक्ट उनका मुझसे ताल्लुक कर दिया जाता, वो उतरता रहता है। बात बताते हैं तो अपने बाबू में है तब भी उनको रोजी दी जाती है, और कब्रों के बाहर है तब उनको रोजी दी जाती है। उनके जो कब्र के बाद सब दोनों कहने लगा क्यों लड़ते थे? वो सवाल कर रहा, हमने कहा बात ये है हम चारों को मानते हैं, चारों एक को मानते हैं, चाहे अपनी हो चाहे हमारा हो चाहे आसमान हो चाहे वो एक को मानते हैं, ठीक को नहीं मानते। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ये चारों आधा जानते कि 2 हाथ है तो 2 पैर है,
कि तुमने तो 2 हाथ 2 पैर बताया, फिर इसमें 2 हाथ कौन है, फिर 2 पैर कौन है? भाई पैर के नीचे होता है, हाथ ऊपर होते हैं। अगर तुम चारों मानते हो तो हाथ कौन से है, पैर कौन से है? फिर उसने सवाल पैदा कर दिया। तो हमने कहा बात यह है कि 2 हाथ जो मोहम्मद साहब के ससुर है वो 2 हाथ है, सिद्दीक अकबर हुआ का पैर कल जो मोहम्मद के दाम मोहम्मद जिसके दाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सिद्दीक कौन है, मोहम्मद की तरफ दाम वो उस्मान वाली उधर पर। तो हमने कहा ये चारों हमारे लिए लाजिम और मंजूर है, एक जिस्म के ये चारों आज़ा हम सबको मानते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे हम सारे मुसलमान हम किसी तरह किसी मुसलमान के दरमियान कोई तफक्का नहीं पड़ डालना चाहते, इसलिए कि आज पूरी दुनिया कहीं नहीं देखा जा रहा है एशिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, लंची है, बागी है, लहदीस है, सुन्नी है, कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोलने वाला है, बात कोई नहीं। और सारे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहे किया हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुन्नी हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वहाबी हूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुन्नी हो, सभी जिस कदर लोग हैं मुसलमान सब कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह के शिया हो या सुन्नी हो, कलमे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों का बाजार ही है। इराक हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, फिलिस्तीन हो, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें सारे मुसलमानों को पामाल कर दिया जाए। वहां ये कुछ नहीं देखा जा रहा। यहाँ तुम देखो, यहाँ तुम कमजोर होते चले जा रहे हैं। हम आपस में बढ़ चुके हैं, हमारे इख्तिलाफात में, हमारे अकायद में हमको बांट रखा है। हमको बचना नहीं चाहिए, हमको तफक्का नहीं डालना चाहिए, ना इत्तेफाकी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि सामने वाला जो है हमको समझ रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाला है। हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह, हमारे अकायद अपनी जगह, हमारे मामलात अपनी जगह, लेकिन हम सब कलमे के नीचे है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कुरान है, इस्लाम है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को एक और एक दूसरे की मोहब्बतें चलो फी सबिलिल्लाह बात जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको उनका कहो, बल्कि वो जिंदा है। किस तरह जिंदा है इस पर कुछ लेना देना नहीं। या तो शऊर पैदा करो, ज़हन में बेदारी पैदा करो, ऐसा ही हासिल देखो। एक इल्म ज़ाहिर होता है, एक इल्म बातिन होता है। इल्म ज़ाहिर जब खर्च करो तो इल्म बातिन को तो खुद रहने लगता है, लेकिन खर्च करने पड़ता है। कैसे खर्च करने पड़ता है? आपने एक घड़ा लिया, रस्सी बांधी, कुएं में डाला, उसको मुसीबत से डुबाया, फिर खींच लिया तो पानी से तो भर गया। ये तुम्हारा कसर था, तुम्हारी मेहनत थी, तो तुमने पानी भर दिया। लेकिन अब अगर तुम कुछ और लेना चाहो तो अपना अमल करो, आमिल बन जाओ। ऐसे आमिल बन जाओ कि पानी को मट्टी से फेंकने लगो, कुदरती उसको 50 दिन ये हवा दाखिल नहीं, ये कुदरत की तरफ से है कि तुम फेंकोगे तो दाखिल होगी। तुम ये पर अमल करोगे तो अल्लाह वही बता करेगा जिस इल्म से दूसरे लोग दे रहा है। परवरदिगार आलम हमें अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफा इमाम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए।